जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सका गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी सिर्फ ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी बस मैं किसी दा कोई निरादर ना कर सकां, कोई मेरे तो गलती ना होवे गुरु महाराज जी। यही करदी हां, प्रार्थना करदी हां गुरु महाराज जी मैं तुहाडे चरनां विच। ते गुरु महाराज जी थोड़ा बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना कि गुरु महाराज जी तुसी साडा हत्थ फड़िया गुरु महाराज जी, तुसी साडी बांह फड़ी गुरु महाराज जी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी थोड़ा जिन्ना भी ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਰ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ, ਬੰਚ ਆਫ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦਿਖੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਸੱਚੀ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਤਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖੀ। OMG। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਫੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋਈ ਹੋਊਂਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੁਛ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਗਲ ਲੜਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਾਣਨੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਜੁਐਲਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲਕਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਝਲਕਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਦ ਨਵੀਂ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਦਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈंने
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਮੈंने ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 90% ਸੰਗਤ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਕਿਊਟ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਈਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾਈਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਤਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੰਘਦੀ ਵੜਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਊਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸਵਰੂਪ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਰੂਪ। ਉਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਚ ਨੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਜਦ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਊਰਜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਸ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਦੀ ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਤਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਸੌਂਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ। ਆ ਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਜੁਐਲਰੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
सही गल कह रही हाँ। अज सुबह ही सुबह गुरु महाराज जी का इन्ना पॉजिटिव मैसेज मैं शेयर तो नहीं कर पावांगी क्योंकि मैं पूरी तरह याद नहीं है, बट इन्ना ज्यादा पॉजिटिव सीगा ना कि मेरा खुद दा रोना निकलिया है। और गुरु महाराज जी ने शुकराना शुकराना शुकराना। पता है वो सुबह ही सुबह जब उठो ना और फेसबुक खोलो या इंस्टाग्राम खोलो या यूट्यूब खोलो और तुम्हें कोई पॉजिटिव मैसेज दिख जाए, मैंने लगता है वो थोड़ी सारी दुनिया सारी दिन का एक सार है। वो सारे दिन का एक हो है कि बस गुरु जी थोड़े नाल है, एक पॉजिटिव मैसेज और दैट मेक्स योर डे। इस तो बाद मैं बस की कवा गुरु महाराज जी दे ज्यादा तो मैं बोल भी नहीं सकती, इन्ना तो मैं मेरी औकात भी नहीं है कि मैं गुरु महाराज जी की ज्यादा बड़ाई कर सका, पर जिन्नी भी गुरु महाराज जी कबूल करना। गुरु महाराज जी बस हमेशा अपने चरनी लगाई रखना, साढ़े दिलों च वास करना गुरु महाराज जी, साढ़े दिलों च राज करना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु महाराज जी, हुण मैं थोड़े तो आग्ञा लेनी आ, इस सत्संग तो ते दूसरे सत्संग की तैयारी करदी आ, और जिवें ही वो सत्संग तैयार होएगा वो भी थोड़ी रजा नाल ही गुरु महाराज जी थोड़ी आग्ञा नाल जिवें ही वो तैयार होएगा मैं दुआ तो फिर थोड़े चरणों विच हाजिर हो जाऊंगी गुरु महाराज जी। ते गुरु महाराज जी मैं तो कोई भी गलती हो गई होवे सत्संग शेयर करते हुए या कोई भी किसी भी तरीके का मैंने कोई मैं वाला हो काम किया होवे गुरु महाराज, किसी का दिल दुखाया होवे मैंने माफ कर देना गुरु महाराज जी, अपनी बच्ची नु माफ कर देना गुरु महाराज जी। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना कि तुसी ये सत्संग सुनोगे, ते आंटी जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना कि तुसी ये सत्संग शेयर करोगे। सबका बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी। पूरे परिवार वालों थानू शुकराना क्योंकि तुसी हमेशा पूरे परिवार दे नाल रहने हो, पूरी संगत नाल रहने हो। सब दे वालों शुकराना 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 शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरा सबसे पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता सत्संग में मुझे पता है मैं सत्संग में मुझे क्या बोलना है, बट मैं पहली बार बोल रही हूँ, तो मेरी तरफ से कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसे माफ़ करें। गुरु जी आपका शुक्रिया, आपने मेरे डैडी को एक न्यू लाइफ बख्शी। जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनकी शुगर सिर पर चढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा हाई शुगर हो गई थी, तो मैंने आपसे अरदास लगाई। मैं एक ग्रुप में हूँ, उनको मैंने वहाँ पे सबको बोला कि आप मेरे डैडी जी के लिए अरदास करो, तो सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो आपकी कृपा से वो आज बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं। शुक्रिया गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सत्संग मेरा है पिछले हफ्ते का, तो बट मुझे तभी करना था, बट मैं उसको कर नहीं पाई थी, और मैं आज मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करूं, इसलिए मेरा दूसरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। आपका तब भी बहुत शुक्राना। मैं अपनी बेटी से नाराज़ नहीं थी, बट मैंने उसको, वो मोबाइल में लगी हुई थी, मैंने उसको गुस्से में कंघी मारी उठाकर। वो कंघी उसके शीशे पर लगी, आँखों के चश्मे वाले शीशे पर, और वो चश्मे का जो शीशा था वहीं टूट गया और उसकी आँख के अंदर चला गया एक छोटा सा टुकड़ा। बट वो टुकड़ा उसने उसी टाइम निकाल दिया और उसके आँख के नीचे 3 कट आ गए उस टूटे हुए शीशे की वजह से। गुरुजी आपने उसको इतना हेल्प करी उस टाइम, इतनी हेल्प करी, उसको बख्श दी उसकी आँख। और मैं उस गिल्ट में तब से जी रही थी कि मैं गुरुजी, मैं बस रो पड़ी थी कि आप अगर ना होते, और मैं
से मैं कैसे कहूँ, आपका लख 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 हज़ार बार शुक्राना। आपने उसकी आँख बचा ली और मेरी भी जीवन में इतना बड़ा एक कष्ट आने से रोक दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरी तरफ से बोलने में मुझे कुछ भी भूल हो गई हो मेरे से, मुझे माफ़ करना। और थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को सत्संग शेयर करने में, उसके लिए सॉरी गुरुजी। आप हमारे लाइफ में ऐसे ही कृपा बनाए रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका लख लख बार शुक्रिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, आंटी जी। मैं गुरुजी की बेटी अपना नाम और स्थान अभी गुप्त रखना चाहती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नहीं जानती कि गुरु जी ने मुझे अपने आप से कब जोड़ा। बात वो पिछले साल की है। एक दिन मेरी बेटी, मैं और मेरी बेटी हम इकट्ठे सोते हैं बेड पर, और वो अपना मोबाइल चला रही थी और अचानक मुझे मोबाइल में से एक तस्वीर निकाल के दिखाती है। कहती है, मम्मा आप इनको जानते हो? मैंने उनको देखा तो मैंने उनको बेटी को बोला, नहीं मैं नहीं जानती। मेरी बेटी एकदम बोली, कहते मम्मा आप नहीं जानते, ये तो इतने फेमस है, इनको तो सारी दुनिया जानती है। मैंने कहा बेटा मैं नहीं जानती, माफ करना गुरुजी, मैं नहीं जानती थी। फिर ऐसा हुआ, बड़ा टाइम निकल गया, मेरी बेटी बाहर चली गई कनाडा, और उसके बाद कोई मतलब मुझे, मैं नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में। और ऐसी बस ठीक है, अपनी जो रोज की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन अचानक मैंने अपना मोबाइल चलाया, उसमें मैंने देखा गुरुजी की वीडियो आई हुई थी, और मैंने जैसे ही उनको देखा मेरे एकदम अंदर से आई, ये तो वही गुरुजी हैं जिसके बारे में मेरी बेटी मुझे बोल रही थी। मैंने जय गुरुजी बोला और मैंने वीडियो देखना शुरू किया। ये मेरे को लगता है 3 महीने के लगभग की बात है। और मैं अक्सर रात को भी वीडियो चुपचाप अपने सिरहाने के पास रख के बेड पे सुनती हूँ, और जय गुरुजी का मंत्र भी जाप करती हूँ। और फिर कुछ ऐसा हुआ संगत जी, मेरा बेटा प्रमोट हुआ, और प्रमोट होने के उसमें घर में बहुत अच्छा माहौल हो गया, खुशी का माहौल था। हम सब बड़े खुश हुए। फिर इसने अपना वहाँ पर ज्वाइनिंग दी। ज्वाइनिंग देने के बाद ये ऐसा हुआ, वहाँ इसको टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, काम का प्रेशर था क्या था, उस ब्रांच में जाते इसकी तबीयत बिगड़ गई। और ऐसी बिगड़ी संगत जी, डॉक्टर पे ले जाके सारा टेस्ट उस्ट कराए, उन्होंने कहा ये टेंशन में, इसको टेंशन बहुत ज़्यादा है। और जब भी फिर क्या था, ऑफिस जाना बंद कर दिया, और जब भी कोई बात करते खबर आ जाता, इतना घबराता कि कांपना शुरू को हो जाता। और एक तरफ मैं बैठती, एक तरफ मेरे अंकल जी बैठते, बीच में बेटा है, दोनों के हाथ पकड़ते, और ये इतना रोता संगत जी, सॉरी संगत जी।
कि कोई तीसरा बंदा, कोई हमें चौथा चुप कराने वाला नहीं था। और रोता रहता, हम भी रोते इसके साथ साथ। ऐसी ये हो क्या गया अचानक। लेकिन पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मैं नहीं जानती, ये तो गुरु जी जानते हैं। ऐसा करते करते आज 3 महीने हो गए मेरे बच्चे को घर में बैठा हुआ है। ऑफिस जाने का नाम नहीं लेता। जब भी ऑफिस की बात करते हैं फिर वही हाल हो जाता है। बहुत घबरा जाता है, कहता मैंने नौकरी नहीं करनी। फिर हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गुरुजी सब जानते हैं, सब जानते हैं। मेरे हस्बैंड भी रिटायर हैं अंकल जी, वो भी बहुत टेंशन में, घर में बहुत टेंशन का माहौल है। कहाँ एकदम इतनी खुशी आई थी और अब एकदम मायूस हुए बैठे हैं। लेकिन एक गुरुजी का आसरा है कि पता है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और मेरे पति की भी कोई नौकरी में बहुत बड़ी समस्या आ गई थी और वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में। अब मैं अभी नहीं इतना बता सकती संगत जी। मेरी गुरुजी से हाथ जोड़ के बेनती है, गुरुजी मैं तो अनजान बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने पल पल हमारी रक्षा की है। कभी तितली रूप में दर्शन दिए, कभी ओम का दर्शन हुए रोटी में, कभी नाग देवता, कभी त्रिशूल। मैं नहीं जानती थी गुरुजी भी आप इन रूपों में भी दर्शन देते हैं। जो जो मैं संगत सुनने लगी, सत्संग, सॉरी संगत जी, तो मुझे पता चला कि आप ऐसे ऐसे भी दर्शन देते हो। सॉरी गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, बोलने में कोई गलती, ऊपर नीचे कोई शब्द हो गया तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी बस यही अरदास है आपके श्री चरणों में, मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरे पति पे, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं भावुक हो रही हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए और मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरा बेटा फिर अपनी जॉब पे चला जाए। वो कहता मैंने नौकरी छोड़ देनी है ना, अभी शादी 31 का हो गया गुरुजी, कोई रिश्ता भी नहीं इतना अच्छा आ रहा है, कोई रिश्ता नहीं आया, आया भी है लेकिन ये मना कर देता है गुरुजी। जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं होगा शादी भी क्या करनी गुरुजी। नौकरी नहीं करेगा तो कौन शादी करेगा गुरुजी। अब आप देखो गुरुजी, मैंने भी आपके श्री चरणों का आसरा लिया है गुरुजी, मुझ पर कृपा करो, मेरे परिवार पर कृपा करो गुरुजी। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना संगत जी गुरुजी। बस यही अरदास है गुरुजी, मेरी जो भी मेरी गलती हुई उसे माफ करना और मेरे घर में सुख शांति का माहौल हो और मेरे बच्चे का शादी का और नौकरी की ब्लेसिंग दो मेरे बच्चे को, उसकी हेल्थ ठीक रहे गुरुजी। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, जय गुरुजी। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। मैं चाहूँगी मेरे बेटे के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि मेरा बच्चा अपनी जॉब पे वापस चला जाए और मेरे घर में भी सुख शांति हो। मैंने कभी भी जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा गुरुजी। अब बेटा अच्छी प्रमोशन हो गई थी, अच्छी जॉब में है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ब्लैक मैजिक है क्या नहीं, रात को सोता नहीं, ऐसे घूमता रहता है। बहुत टेंशन होती है, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते गुरुजी। इतना समझदार और इतना अच्छा बच्चा, लेकिन आज उसकी हालत देख के मेरे से नहीं देखी जाती गुरुजी। अपनी इस बेटी की पुकार सुन लेना गुरुजी, कृपा करो, कृपा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सुखना
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हमारे पड़ोसन का एक औरत बोली थी कि बड़ा मंदिर हरदम बीमार रहती हो तो बड़ा मंदिर जाओ, वहाँ गुरु महादेव का स्वरूप है और वहाँ गुरु महाराज भी हैं। जो वहाँ जाता है वहाँ का जल प्रसाद पीता है वो सही हो जाता है। बड़ा मंदिर से छतरपुरी बड़ा मंदिर की नाम से सर्च मारोगी तो मोबाइल पर दिखाएगा। सत्संग सुनना, सत्संग जितने सुनोगी उतने आपको फायदा रहेगा। तब से मैं सर्च मारी बड़ा मंदिर के तो सत्संग सब लिखड़ा और तब से मैं सुनने लगी। तब से सुनते सुनते बहुत हमको आराम मिला। अब यही मैं सोचती थी कि अब गुरु महाराज का दर्शन कैसे होगा, कैसे बुलाएंगे गुरु महाराज, कैसे जाऊंगी। और गुरु महाराज बुला लिए और बढ़िया से गए उनके दरबार में और उनका दर्शन हुआ। वहाँ जल प्रसाद वहाँ पिया। वहाँ इतना अच्छा लग रहा था कि आने का दिल नहीं कर रहा था। गुरु महाराज सब पर कृपा बरसाना। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतन शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। सब पर कृपा बरसाने के लिए और सब पर अपना ब्लेसिंग करने के लिए गुरु महाराज सब पर कृपा करना। देव के देव महादेव तो आप ही हैं गुरु महाराज। और सबका दुख दलित ठीक करिए और उसके पीछे मेरा भी अब फिर जल्दी बुलाइए। और आपका दर्शन तो मिला था गुरु महाराज। गुरु महाराज आप भी थे और गुरु महादेव भी आपके ऊपर बैठे थे, सर के ऊपर। आपका दर्शन बढ़िया से हुआ। गुरु महाराज ऐसे दर्शन देते रहना और पूरे परिवार पर अपना हाथ रख देना गुरु महाराज कि हम लोग का संकट दूर होके। गुरु महाराज शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतन गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अभी तो बहुत कुछ करना है मगर अभी कभी मैं चर्चा कभी सत्संग बोली नहीं हूँ, भूल भी रही हूँ, याद भी इतना नहीं हमको रहता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपका कृपा पूरे परिवार पर। गुरु महाराज जैसे आप बुलाए मैं आपके आश्रम आया करूँ और आपका कृपा पूरे परिवार पर रहे। आपकी कृपा से सब कुछ सही रहे। गुरु महाराज दया शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं डिवाइन वर्ल्ड का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो मेरे प्यारे गुरुजी के सत्संग आप संगत तक पहुँच जाते। आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी पर गुरुजी मेहर करें,
उन्हें हर खुशी दें। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्यारे गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी ऐसे ही हमारे मन के भाव पढ़ लेते हैं। वो सब जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहा था कि गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप मेरे घर आए। मेरे मन की बहुत इच्छा थी। 25 तारीख को दिन बुधवार को गुरु जी का स्वरूप मेरे घर आया। मेरे तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। बुधवार के दिन ही मेरा जन्म हुआ था और प्यारे गुरु जी ने मुझे 7 की ब्लेसिंग दी। मुझे प्यारे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तैयारियां कर लें, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। मुझे बताते हैं कि मुँह मिठाइयाँ मंगवा ले, सबका मुंह मिठा करवा ले। जय गुरु जी। संगत जी, क्या बताऊं, मेरे तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। संगत जी, जब मैं प्यारे गुरु जी का स्वरूप अपने घर लेके आ रहा था तो येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे आगे उड़ रही थी। जो प्यारे गुरु जी की इच्छा हुई, मैंने गुरु जी को बताया कि मैं कौन सी मिठाई लूं। फिर मेरे मन में आया कि मैं बेसन लेके घर जाऊं। फिर जब गुरु जी का स्वरूप आया तो मैं मिठाई लेके घर आया, मुंह मिठा किया अपना और अपना माता जी का। संगत जी, अभी भी मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा तो मुझे स्वरूप से फ्लावर्स की फ्रेगनेंस आने लगी। धीरे धीरे वो फ्रेगनेंस मेरे घर में और मेरे रूम में फैल गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अभी भी गुरु जी के स्वरूप से मुझे फ्रेगनेंस आ रही है। मेरे घर में फ्रेगनेंस आ रही है। जिस भी रूम में जा रहा हूँ, चाहे किचन में जा रहा हूँ, चाहे ऊपर के फ्लोर पे जा रहा हूँ, हर जगह मुझे गुरु जी की फ्रेगनेंस आ रही है। संगत जी, प्यारे गुरु जी का मुझे बहुत ही प्यारा सोना सा मैसेज आता है। गुरु जी मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें बड़े मंदिर जल्द ही बुलाऊंगा और उस दिन अपने हाथ से तुम्हें लंगर करवाऊंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपने पुत्र के सर पे ऐसे ही अपना ममता का हाथ सदा के लिए बनाए रखना। सदा के लिए ऐसे ही हमारा प्यार बना रहे। बस मेरी आपसे यही अर्जी है, कामना है कि मैं आपकी भक्ति के रंग में रंग जाऊं प्रभु, और जैसा आप अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, जैसी आपकी मर्जी है, मैं वैसा ही हो जाऊं। संगत जी, प्यारे गुरु जी का स्वरूप तो मेरे पास आ गया। मेरे घर में साक्षात गुरु महाराज जी आ गए। लेकिन अब मुझे चिंता हो गई कि मैंने इनका फ़ोटो फ्रेम भी करवाना है। मुझे फ़ोटो फ्रेम की चिंता नहीं थी, मुझे ये चिंता थी कि वीरवार को ही मैंने गुरु जी का फ़ोटो फ्रेम करवा के अपने घर ले आना है। संगत जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है और मैं जान भी गया कि हम अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारे जो भी काम होते हैं वो प्यारे गुरु जी की इच्छा से ही होते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। संगत जी, फिर मैंने ऑनलाइन ट्राई किया। फिर मैंने सोचा कि इसके लिए तो टाइम लग जाएगा, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया, उससे पूछा कि कल तुम शॉप पे आओगे? उसने बोला, सर कल
तो नहीं आ सकता, मैं कल बिल्कुल भी नहीं आ पाऊँगा। कल तो बड़ा अर्जेंट है, क्योंकि आजकल डेकोरेशन का काम चला हुआ है, मैरिजें लगी हुई हैं, तो हमें डेकोरेशन पे जाना पड़ता है। मैंने उसको बोला ओके, तो मैंने कहा कब तक हो पाएगा? वो कहता है कि शनिवार तक मैं आ पाऊँगा। संगत जी, अगर गुरुजी ने काम करवाने होते हैं तो वो घर से उठा के ले आते हैं। संगत जी, आज मैं इसी कसमकस में डूबा था कि आज मुझे गुरुजी के स्वरूप को अच्छी तरह से फ्रेम करवा के घर लाना है। 26 सितंबर को ये मेरे मन की इच्छा थी कि आज थर्सडे है, वीरवार है, और प्यारे गुरुजी ने मेरे मन की यह इच्छा भी पूरी कर दी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी, सब संगत का कल्याण करो, सबके दुख रोग कष्ट दूर करो प्रभु, सर्वदा भला करो, तन तन गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, जो मेरे नियर बाई फोटोग्राफर थे, मैंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा सर कि आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो एक दिन में कैसे फ्रेम हो पाएगा? संगत जी, गुरुजी की लीला देखो। जिस फ्रेंड को मैंने कल शाम को कॉल किया था, उसकी मुझे आज कॉल आ जाती है। वो मुझे बताते हैं कि मैं आज शॉप पे आ रहा हूँ, तो आप आ जाना। संगत जी, जब कल शाम को उससे मेरी बात हुई थी, तो उसने बोला कि कल को तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कल तो मैं आ ही नहीं पाऊँगा। गुरुजी का करिश्मा देखो कि उसको घर से बुला लिया। संगत जी, मैं उसमें ऑफिस में था, मैंने उसको बताया कि मैं 3 बजे के बाद आपके पास आ जाता हूँ। उसने कहा ठीक है, आप आ जाइए। माफ़ी चाहूँगा गुरुजी, माफ़ी चाहूँगा संगत जी। मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि गुरुजी का जो स्वरूप आया है वो बहुत ही प्यारा स्वरूप आया है मेरे पास। देख के तो मन बहुत बहुत खुश हो जाता है। पीले पीले फूलों में, पीले रंग के चोले में साक्षात गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे प्यारे गुरुजी, और उनके स्वरूप से फ्रेगनेंस आ रही है फ्लावर्स की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं फिर उस भाई की शॉप पे आ गया। उसकी शॉप ओपन ही थी, वो निचली वाली शॉप में बैठा था, वो मेरा वेट कर रहा था। मैं उसकी शॉप के अंदर गया, लॉक नहीं था, तो मैंने देखा वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैंने उसको कॉल किया, उसने बोला मैं नीचे बैठा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं शॉप पे ही हूँ। मैंने कहा मैं तो आपकी शॉप के अंदर हूँ, यहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर वो भाई शॉप में आ गया। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला और उसके पास दिया, किसी अच्छे से फ़ोटो फ्रेम करवा दो। संगत जी, उस भाई ने इतने खुश होके काम किया कि पूछो मत, मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये भी गुरुजी की इच्छा थी कि उसने इतने अच्छे से फ़ोटो फ्रेम करवाया कि मैं दंग रह गया। पहले हमने सोचा कि फ़ोटो को लैमिनेट करते हैं, प्यारे गुरुजी की इच्छा नहीं थी फ़ोटो को लैमिनेट करने की। फिर उसके पास एक शीशे का फ्रेम पड़ा था, उसने कहा कि मैं इसमें गुरुजी का स्वरूप लगवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो करें, और जो गुरुजी की इच्छा है। कहते हैं ठीक है। संगत जी, फिर मैंने एक पतले शीशे के फ्रेम में गुरुजी के स्वरूप को लगाया। अभी मैं गुरुजी के ही पास बैठा हूँ, और जो भी आपको सत्संग सुना रहा हूँ ये मेरे शब्द नहीं है, गुरुजी मेरे मुख से बुलवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप का आना ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे प्यारे गुरुजी इतने प्यारे लग रहे हैं कि मेरे तो स्वरूप से नजर ही नहीं हट रही है। मैं तो गुरुजी के पास बैठा हूँ। प्यारे गुरुजी ने मुझे एक और स्वरूप ब्लेस किया है संगत जी, वो भी जल्द ही मेरे पास आ रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में तो हर दिन शुक्राना हो रहा है
गुरुजी कितनी मेहर हो रही है कि क्या बताऊं संगत जी। जिंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, चिंताएं धीरे धीरे मन से मिट रही हैं। अब प्यारे गुरुजी मेरे घर आ गए हैं तो मुझे कोई भी चिंता नहीं है। प्यारे गुरुजी सब देख लेंगे। मैंने अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी है। मेरे जीवन रूपी नौका के वो ही पतवार माझी हैं, वो ही मेरे सब कुछ हैं। मैंने सब कुछ अपने प्यारे गुरुजी को मान लिया है। प्यारे गुरुजी ही मेरे जीवन और परिवार की रक्षा करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, परिवार के सदस्य को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक से बाहर निकालने का शुक्राना। जो दात बख्शी है प्रभु उसका भी शुक्राना, जो दात नहीं बख्शी है उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो जाने अनजाने में बुरे कर्म हुए हैं जो आपने काटे हैं उसका भी शुक्राना, जो बुरे कर्म नहीं हुए हैं उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना प्रभु। सदा ही अपने बेटे का हाथ ऐसे ही थामे रखना, कभी साथ नहीं छोड़ना। ऐसा ही हमारा प्यार बना रहे, सदा नीमा होके चलूं, आपके गुणों को अपनाऊं। जय गुरु जी। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मेरा सहारा मेरे गुरुजी खुद हैं। जय गुरु जी। सर्वदा कल्याण करना, सबदा भला करना, सबदे कष्ट रोग दुख तकलीफ़ें दूर करना, सबको अच्छी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। गुरु जी, प्यारे गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में तो गुरु जी ने हर दिन सत्संग हो रहे हैं प्यारे गुरु जी की कृपा से। तो अभी प्यारे गुरु जी की इतनी ही इच्छा है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम देने से पहले प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब पर मेहर बनाए रखना प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव इसी यू। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।